All right, everyone. Let's start today's session. The goal is to complete essay 500, 501, 505. If possible, we will start 510 as well, right? But at least I'm targeting 3 standards, so you should be mentally prepared that we are going to complete 500, 501, and 505. Now, before we start with audit evidence journey, we'll just do a quick breathing exercise. I request you all to sit straight. Your back should be straight, your neck should be straight. Close your eyes, everyone. Keep your right hand on your chest and your left hand on your belly. If you don't feel comfortable with this, keep both of your hands on your lap. Breathe slowly, deeply. Breathe to the count of 4, hold to the count of 4, and exhale to the count of 6. When you are exhaling, exhale it from your mouth. And imagine during exhaling that you are leaving out all your doubts, anxiety. Let's start. Inhale to the count of 4. Hold. And exhale. Inhale. Hold. And exhale. Inhale. Hold. 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 Let go. Whenever you are ready, open your eyes. Now, let's start with essay 500. Essay 500 talks about audit evidence. So, until yesterday, you had already gone through the entire entity. You had spoken to a lot of people. आपने बहुत सारे लोगों से बात कर ली है. आपने इंक्वायरी कर ली है उन लोगों के साथ में. There is internal control understanding you have taken entirely. इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग लेके, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेके आपको कुछ ना कुछ रिस्क तो दिख रहा होगा अभी तक, राइट? इट्स अ बिग बिजनेस यू हैव इवेल्युएटेड, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क तो दिख रहा होगा. एंड रिस्क सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस को रिस्क है, बिजनेस को लॉस हो जाएगा. रिस्क ये है कि शायद एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ राड़ा कर सकती है, मे बी ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर. इट कैन बी बोथ द मिस स्टेटमेंट. तो सवाल क्या है कि जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट है, हो सकता है, यू कांट जस्ट गो एंड पुट दिस इन योर ऑडिट रिपोर्ट, राइट? यू नीड टू हैव सम प्रूफ्स. प्रूफ्स कहां से लेकर के आओगे? चैप्टर 4 विल टेल यू.
कि प्रूफ्स लेकर आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 4 विल टेल यू, देन ये भी बोलेगा कि प्रूफ कैसे होने चाहिए, दे नीड टू बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, राइट? एविडेंसेस कैसे चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अदरवाइज आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना सकते ना। इतने 1 लाख शेयर होल्डर्स, मोर देन 10 लाख शेयर होल्डर्स आर रीडिंग योर ऑडिट रिपोर्ट एंड यू आर नॉट इवन इंश्योरिंग कि आपका प्रूफ सफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट है। सो हाउ डू यू इंश्योर सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, ये चैप्टर आपको बताएगा। Cool. Shall I open the book now? You have your material in front of you. Please be very, very participative in the class. This is not a one-way lecture going on, guys. So whenever I ask, and be very quick also. Now learn that. I ask a lot of question. You just, keep your device in a distance so that you can unmute yourself, answer. In this Yes, ma'am. chapter, there is so much that we have to cover, but it's not tough. One thing I can tell you, that after we are finished with all these standards, you will feel like super confident. This will carry approximately 20 marks, 15 to 20 marks in your exam. I have told you they don't ask these questions in CA final much. They only ask extensively at your level. Same thing happened with your chapter 3. Same thing happened with your chapter 5. So we'll study audit evidence, क्या होता है, कैसे कलेक्ट करना पड़ता है एंड ऑल दैट। देन एविडेंस कलेक्ट करने के लिए क्या हम इंटरनल ऑडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हमको 100% चेक करने की जरूरत नहीं है, सैम्पलिंग पॉसिबल है, कर लो। एंड अगर एक बार डिसाइड कर लिया सैम्पलिंग करना है, उसके पहले एक हाथों हाथ क्या कर लेना आप, कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर, यूज योर ब्रेन, एनालिटिकल प्रोसीजर। एक बार वो कर लिया, देन यू हैव टू कम टू स्पेशल आइटम्स। क्या स्पेशल आइटम्स पे आना है आपको? आपको देखना है कि अगर इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन का ऑडिट करना है तो 501 के बेसिस पे करोगे। अगर आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स या फिर किसी ट्रांजेक्शन का या फिर किसी बैंक से कंफर्मेशन लेना है तो 505 के हिसाब से करोगे। अगर फर्स्ट टाइम आप उस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, या तो फिर पहले कोई और ऑडिट, लाइक फर्स्ट पहले कोई और ऑडिट करता था आपके क्लाइंट का, आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, या तो पहले क्लाइंट ने कभी ऑडिट करवाया ही नहीं है, इस बार आपसे करवा रहा है, तो 510 में ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड क्या एविडेंसेस लोगे आप, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन अगर आपका क्लाइंट जो है ऐसे 550 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में एंटर होता है तो उससे रिलेटेड आपको क्या एविडेंसेस लेने हैं, दैट्स ऑल। सो 500, 610, 530, 520 एनल, दे आर प्रीलिमिनरी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये पहले कर लो, एंड उसके साथ ही साथ फिर आप 501 में स्पेशल कंसिडरेशन ले लो, 505 में कुछ स्पेशल चीजें देख लो, 510 में, 550 में। नाउ लास्ट नाइट, from a case scenario, case study, from a recent case study, I have shared a extract on your WhatsApp group. Have you seen that? You have? Yes, ma'am. अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ऐसे 550 के पढ़ने के पहले। मैंने पूरा केस सिनेरियो नहीं रखा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ग्लिम्स कि एक एंटिटी कैसे रिलेटेड पार्टीज को यूज करके अपना मोटिव फुलफिल करता है ऑफ फ्रॉड, डूइंग द फ्रॉड। एंड वो सेबी के वर्डिंग से ना एग्जैक्टली क्लियर था कि एंटिटी ने किया है। वो केस सिनेरियो बहुत बड़ा है, आपको सिर्फ 3 लाइन में मैंने दिया था कि 550 क्यों जरूरी है आपको पढ़ना ठीक से, एंड वाई इवन आई आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम 550। बट एनीवे, वो हमारे लाइफ में थोड़ा आगे जा करके वो जर्नी आएगा। क्या मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछूं कि अगर आपको कोई बोलेगा ऑडिट एविडेंस होता क्या है, सो विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन इन 1 लाइन व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? Yes, ma'am. कैसे? Information used by auditor to At conclusion. arrive at what? Conclusion. Conclusions. What conclusion? The conclusion on which your opinion will be based. I have taught you that cycle, right? Never forget. What is evidence? Evidence is going to be certain information that you are going to obtain during the audit. Once you know this evidence is sufficient and appropriate, then you will go ahead and form a conclusion. क्या conclusion बनाएंगे बॉस यहाँ पर कि
क्लाइंट ने मिस स्टेटमेंट किया है या नहीं किया है, वॉट एवर मे बी द कंक्लूजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन आप आपके 700 के सीरीज में जाकर के क्या करोगे, यू विल गिव एन ओपिनियन, राइट। सो पहले उन्होंने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल एग्जामिनेशन ये सब करना पड़ता है, ठीक है। बट आप इधर आओ, आप मेरी बात सुनो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 500 में? ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर एज पर ऐसे 500 इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म प्रोसीजर्स। Riddhi, can you tell me what procedures is he talking about over here? What procedures you studied yesterday in SA 330 and 315? Siddhi, are Ma'am, you? risk assessment Sorry, Riddhi. In hello. 315, what procedure you did? Risk assessment Risk procedure. assessment procedure. In 330, what procedure you did? Further audit procedure. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सो वही वो बोल रहा है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है 500 ऐसे 500 में, दैट ही विल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर विच इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। कैसे करेगा? इन सच अ वे दैट इट विल इनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यस, क्यों करना है उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन? सो दैट ही कैन ड्रॉ अ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच ही विल बेस हिज ओपिनियन। डिडंट आई टीच यू दिस ऑलरेडी? ये साइकिल मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, सिर्फ आईसीआई उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर देता है और कुछ नहीं है, राइट। शोएब, आर वी क्लियर? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 500? शोएब, कैन यू प्लीज रिपीट? शोएब, शोएब, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 500? Yes, ma'am. Objective of the auditor is to design and perform audit procedures in such a way as to enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. ब्यूटिफुल। सो बेसिकली नाउ दे हैव गिवन यू अ वेरी इनिशियल ज्ञान कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है। ऑडिट एविडेंस वो जानकारी है, वो इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर यूज करता है इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच हिज ओपिनियन इज बेस्ड। सो जो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था वही लिख दिया, सिर्फ बता दिया कि ऑडिट एविडेंस क्या है, वो इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है आपको? इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलेगा या तो फिर अदर इंफॉर्मेशन से मिल सकता है। एक तो आपको अकाउंटिंग में क्या डेटा है वो देखना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बिल, वाउचर, वो देखो, एंड अदर इंफॉर्मेशन। अभी अदर इंफॉर्मेशन क्या है वो आगे जाके बताएंगे आपको। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिडरी लेजर, जर्नल एंट्रीज, देन सच अदर वर्कशीट, स्प्रेडशीट जैसे कॉस्ट एलोकेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, बैंक रिकंसिलेशन, ऑल ऑफ दैट क्लाइंट प्रिपेयर। यही होती है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और क्या होगा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए? देन कम्स द अदर इंफॉर्मेशन। क्या अदर इंफॉर्मेशन बोला है उन्होंने? मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न कंफर्मेशन लो डेटर क्रेडिटर से, मैनुअल्स पढ़ो इंटरनल कंट्रोल के, ये अदर इंफॉर्मेशन होंगे। और क्या होंगे? एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया, 3 4 एग्जाम्पल, एक अदर इंफॉर्मेशन हो गया, फटाक से लर्न करो तीनों, आठों। ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूछ लिया तो इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड पूछा तो 5 लिख कर आना है ऊपर का, एंड 3 लिख करके आना है इन योर अदर इंफॉर्मेशन। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, sometimes they ask you a very silly, easy question. What are the type of evidences? So first you tell them type of evidences या information का information जिसको आप evidence बोलते हो की तरह use करने वाले हो, वो information will depend on its nature and source. पहली बात, नेचर इन द सेंस वो जो इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप एविडेंस बनाने वाले हो, इट कैन बी विजुअल,
सच एस आपने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑब्जर्व किया है, आपको ऐसे 501 पे बोलते हैं ना, जाओ जाओ क्लाइंट पे अटेंड इन्वेंट्री काउंट, तो वो आपको बोलते नहीं है कि जाके गधा मजदूरी करो वहां पर कि खुद ही काउंटिंग करना है, नहीं नहीं, ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट, राइट? देन यू टेक ओरल information. Oral, how do you take oral information in SA 315? What in oral information you took? Inquiry from management. You Inquiry took from management. inquiry from management TCWG. and अरे वो इतना Other personals in the अदर entity. पर्सनल इन द एंटिटी, अदर्स विद इन द एंटिटी, जिसमें से आपने उसके मार्केटिंग वाले बंदे से बात की थी, आपने उसके लीगल वाले बंदे से बात की थी, आपने इंटरनल ऑडिटर से बात की थी, आपने आईटी वाले बंदे से बात की थी, आपने उस बंदे से बात की थी जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है। मैंने किसको छोड़ दिया? मैंने 5 बोले, क्या छोड़ा मैंने? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कमिटी, हाउ दे आर और गवर्निंग द रिस्क, 6 हो गए। और क्या छोड़ा? आई थिंक 7 थे वो। employee employees एम्प्लॉय वाला हो गया, लास्ट वाला पॉइंट मैंने कवर किया, Internal auditor. वो भी कवर किया। In-house IT team. सॉरी, In-house IT team. आईटी टीम का मैंने लीगल डिपार्टमेंट मिस किया था। लीगल हाँ डिपार्टमेंट, आपने बोला लीगल अच्छा डिपार्टमेंट बोला बोला था था क्या? हाँ ओके, सो मार्केटिंग हो गया, लीगल हो गया, इंटरनल ऑडिटर हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हो गया, देन उसके बाद में आईटी टीम हो गया एंड अदर एम्प्लॉइज हो गया विच आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। सो एक बार देखो ना वो पेज में क्या छूटा है, गो बैक। मैम इतना ही मैम। इतना ही है मैं 7.3. मार्केटिंग भी किया था। सॉरी, मार्केटिंग ना, हाँ मार्केटिंग तो आई थिंक आई टोल्ड ना इन द फर्स्ट वन हाँ मैं बोल रहा हूँ। यस वही है मैम ना, फिर बोला छोड़ो, था। जाने दो, इतना ही आएगा एग्जाम में, 5-6 पॉइंट लिखने के लिए आएगा एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर। बस याद रखना उन लोगों से इंक्वायरी क्या करनी है, साइड हेडिंग मत क्लिक करके आ जाना, इससे आधे मार्क्स काट लेता है। चलो सुनो मेरी बात। सो आपने ये जो लोगों से बात की थी, ये तो ओरल इन्फॉर्मेशन ले ली ना आपने, उसको ही आप एविडेंस बना सकते हो। प्लस उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, जैसे फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट, सेल्स इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, ये सब क्या है? ये तो डॉक्यूमेंट है ना जो आप एविडेंस की तरह चेक करते हो। आर वी क्लियर? कितना सिंपल आंसर है ये। देन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कहां से मिला है वो जानकारी, वेयर हैव यू गॉट दैट इंफॉर्मेशन। सो देर आर टू प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू गेट द इंफॉर्मेशन, आइदर इट विल बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आइदर इट विल बी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आर वी क्लियर? You will be asked question on this. They will not ask you like if they want to ask this simple question, they will ask. But my point is, they will ask this question only along with this bonus question, which is also important question in your life. That is, which information is more reliable? Out of, you said internal and external evidences, no? Out of this, which information is more reliable? So you will say external information. Extra. External information, external evidence is generally considered to be more reliable because they come from the third party, and third party is normally, third party थोड़ी पागल है कि बैठ करके आपके डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करते बैठेगा, unless and until उसको फ्रॉड करना है. So because the third party who are normally not interested in manipulating the accounting information of other person. Can you learn this sentence as it is? I don't want to mess your answers. 3 लाइन का आंसर है, you have to logically understand and learn it. You will say that as per SA 500, how will you write this answer? As per SA 500 audit evidence, name of the standard लिखना important होता है. The external evidence is generally considered to be more reliable as they come from third party who are not normally interested in manipulating the accounting information of other people. Geeta, can you repeat the sentence for me, please? The external evidence is generally considered to be more reliable. They come from third parties who are not normally interested in manipulation the accounting information of others people. Yes, but यहाँ पर भी caveat है. What is the caveat? If auditor has any reason to doubt the independence of the third party who has provided you this evidences, then please exercise greater vigilance in that matter. Be very careful, because अगर आप थर्ड पार्टी को मालूम है कि यार ये रिलेटेड पार्टी है, जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है एंटिटी के साथ में मिलके, then please don't be very grossly negligent over there. Be very careful what you are checking. Do exercise greater vigilance in that matter.
जैसे कि रिलेटेड पार्टी, एसोसिएट कंसर्न के साथ में ट्रांजेक्शन है, भला ही वो थर्ड पार्टी है लेकिन वो रिलेटेड पार्टी है, वो फ्रॉड कभी भी कर सकते हैं। यस, सो व्हाट इज द Yes, सेकंड सेंटेंस जयांश? however, if the auditor has any Don't reason don't to read, doubt, don't read. Try to recall. Take 1 minute. I'll pause. मतलब if the auditor has doubt on the third party, इनकी इंडिपेंडेंस का अगर ऑडिटर को डाउट है, तो जो थर्ड पार्टी उसको एविडेंस प्रोवाइड करता है, उसे उससे ब्लाइंडली ब्लाइंडली उसे फॉलो नहीं कर लेना चाहिए। उसको अपने विजिलेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ध्यान में रखते हुए आगे अपना ऑडिट एविडेंस Correct. देना So he चाहिए। shall exercise greater vigilance in that matter, right? And you give the example that invoices in case of invoices of an associate concern, right? अगर कोई बिल आया है रिलेटेड पार्टी से, तो वहां पर आप ऐसे मत सोचना कि अरे अरे ये तो थर्ड पार्टी से आया है, लेट्स एक्सेप्ट इट एज इट इज, राइट? नाउ द थर्ड पॉइंट हियर इज आईसीआई इज टेलिंग यू, और आप भी वही याद रखोगे उसमें, कि ऑर्डिनरली रूल क्या होता है कि जब भी आप एक्सटर्नल एविडेंस ऑब्टेन करते हो, लुक एट मी, डोंट लुक एट बुक, जब भी आप एक्सटर्नल एविडेंस लेते हो तो भी उस एक्सटर्नल एविडेंस को इंटरनल एविडेंस के साथ में मैच करो एंड देखो कि क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कोरोबोरेट कर रहे हैं क्या। क्योंकि देखो, अगर क्लाइंट के सेल्स इनवॉइस में दिखा 1 लाख रुपए, आपने डेटर को कंफर्मेशन भेजा, डेटर बोलता है नहीं नहीं 90,000 रुपीज ही पेमेंट करना बाकी है मेरा, तो वो 90,000 और 1 लाख तो डेटर मैच नहीं कर रहा है ना। दे शुड मैच। अवर गोल क्या है कि ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया और उसमें जो आया उसको बोलो, क्लाइंट को बोलो नहीं क्लाइंट चेंज करो, वो तो तुम्हारा डेटर ऐसा बोल रहा है। नो नो नो, ट्राई टू मैच इट। अगर नहीं हो रहा तो क्लाइंट को बोलो रिकंसाइल करे, राइट? So, as a ordinary rule, the auditor should try to match the internal and external evidences as far as practicable. Where external evidence is not readily available, the auditor should see to what extent various internal evidences corroborate with one another. अगर वो नहीं मैच कर रहा है एक्सटर्नल एविडेंस इंटरनल एविडेंस के साथ में, देन इन दैट केस आप क्या करोगे? ट्राई टू फाइंड आउट कि और क्या इंटरनल एविडेंसेस होते हैं, हो सकते हैं जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, विच सपोर्ट ईच अदर। सो सेल्स इनवॉइस के ऊपर आपको शक हो रहा था ना, आप डिस्पैच मटेरियल देखो, जो ट्रांसपोर्टर माल लेके गया होगा वो कुछ लॉरी रिसिप्ट वगैरह दिया होगा ना, उसको मैच करो। कस्टमर का ऑर्डर कॉपी आया होगा ना, आप अमेजोन पे ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर प्लेस होता है ना आपका, ऑर्डर के साथ में मैच करो उसको। यस, कोलैबोरेट करो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। माय क्वेश्चन टू यू इज, whenever you are expressing an opinion on the truth and fairness of the financial statement, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख कर आएगा, ये लाइन रहेगा क्वेश्चन में, an auditor has to express an opinion on the truth and fairness of financial statement, he shall consider the relevance and reliability of information to be used as audit evidence. कोई जानकारी को ऑडिट एविडेंस तक के लिए यूज करने के लिए उसको रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी देखना पड़ता है। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, राइट? सो एक काम करना, रेलिवेंस का मतलब याद कर लेना, जस्ट इन केस अगर उन्होंने रेलिवेंस खाली पूछ लिया ना, तो आप रिलायबिलिटी के पॉइंट्स ना लिख करके आ जाओ पॉइंट बी के यहाँ पर। इससे बेटर है यू लर्न रेलिवेंस विद मी। रेलिवेंस मतलब क्या बोलते हैं कि कोई चीज रेलिवेंट है, आप कैसे डिटरमाइन करोगे? अगर वो कोई लॉजिकल कनेक्शन बैठाते हैं, किसके साथ में लॉजिकल कनेक्शन? फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। सी, आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा और बोला कि भाई ये रेलिवेंट है या नहीं है, तो आप देखो कि क्या वो ऑडिट के पर्पस के लिए सफिशिएंट है क्या। अगर वो ऑडिट के पर्पस के लिए कोई कनेक्शन नहीं बैठा रहे, लीव इट एज इट इज। दूसरा, सिर्फ ऑडिट के पर्पस के लिए नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस असर्शन को आप ऑडिट कर रहे हो उस असर्शन के साथ में भी लॉजिकल कनेक्शन बनाना चाहिए। मैंने आपको दो चीजें बोली है और आप ये दो चीजें ऐसे याद रखना कि एक एविडेंस को हम कैसे बोलेंगे कि वो रेलिवेंट है। अगर वो लॉजिकल कनेक्शन बना रहे, किसके साथ में? दो चीजों के साथ में, लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ ऑडिट एंड दूसरा assertion of financial statement. assertions in financial statement. Did you get these two sentences in your book, guys? Everyone?
फिर उन्होंने बोला कि कोई एविडेंस का जो रेलिवेंस है ना, वो किस चीज से इफेक्ट होता है कि उसका डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है, एज अ गिवन सेट आउट ऑडिट प्रोसीजर मे प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस दैट इज रेलिवेंट टू सर्टेन असर्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एवरीवन लुक एट मी, डोंट लुक ओवर देयर। आपको अगर आपको अगर बैंक का बैलेंस चेक करना है, क्लाइंट का वेरीफाई करना है, तो कैन यू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल द बैंक? Yes, बैंक को कंफर्मेशन लेटर भेज करके मांग सकते हो क्या कि क्या बैलेंस है बता दो? शोएब, yes, गीता, मयंक, एवरीवन, Yes, ma'am. कैन यू सेंड द एक्सटर्नal confirmation letter to debtors and creditors? Yes. yes, yes. But can you send external confirmations to all the shareholders to confirm the share capital they are holding? Mm, सी भेजने के लिए भेज सकते हो, बट क्या उसका कोई लॉजिकल सेंस बनता है? शेयर कैपिटल no. चेक करने के लिए आप शेयर सर्टिफिकेट नहीं चेक कर सकते। टेल मी ना, अभी क्या 1 करोड़ लोगों को क्या आप कंफर्मेशन लेटर लिखोगे क्या? नहीं ना। सो No. यू हैव टू फाइंड आउट कि उस असर्शन के लिए वो रेलिवेंट है या नहीं है, जो आपका प्रोसीजर जो आप लगाने वाले हो। सिमिलरली obtaining audit evidence regarding a particular assertion, on the other hand, on audit evidence from different sources or from a different nature may be relevant for the same assertion। क्या बोल रहा है? एक ही असर्शन के लिए आप मल्टीपल प्लेसेस से भी एविडेंसेस ले सकते हो, और हो सकता है सर्टेन एविडेंसेस जो है, सर्टेन इंफॉर्मेशन एक असर्शन के लिए रेलिवेंट है, दूसरे के लिए रेलिवेंट नहीं है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन शेयर कैपिटल पे काम नहीं कर, लॉजिकल नहीं बनता है लेना, लेकिन बैंक बैलेंस डेटा क्रेडिटर पे बनता है। एटलीस्ट इतना आप लिख करके आ जाना, उसके ऊपर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सपोज ये पूछेंगे कि रिलायबिलिटी कैसे देखे किसी इंफॉर्मेशन की। सो रिलायबिलिटी ऑफ इस इंफॉर्मेशन इज, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। रिलायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हो किसी इंफॉर्मेशन की? Reliability is always influenced by source and nature Nature. and the circumstances under which it is obtained. What did I tell you? Please highlight these 3 keywords in you. Reliability depends on the source, nature and circumstances in which it is obtained. जो ही reliability कैसे influence होती है? Influenced by its nature, source, and under which circumstances it is obtained and controls over it. Control over its preparation and maintenance, right? Of where relevant. Therefore हम जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो जनरलाइजेशन होता है अबाउट द रिलायबिलिटी। हर एक डॉक्यूमेंट को हम शक की निगाहों से नहीं देख रहे होते, कुछ ना कुछ जनरलाइजेशन होता है। यस, this question is there in your books. It is asked many times. Vishwesh, can you tell me what are those following generalization when it comes to reliability of audit evidence? The reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent source outside the entity. When it is independently sourced from outside the entity. Then The reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls, including those over its preparation and maintenance imposed by the entity, are effective. So reliability of internally generated, guys please scribble even though you know this answer. Reliability of internally generated information is more when its related Controls. internal controls are effective. Then Audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. Yes. so audit evidence is obtained. Ma'am, लिखा है first point. अच्छा, okay, that is the same point. Okay, हाँ, correct. Yeah. So audit Audit evidence evidence. obtained directly by the नहीं ना, audit evidence obtained directly by the auditor is वो दूसरा point है ना। Different है। अच्छा different है क्या वो? हाँ हाँ, Okay. audit evidence is मतलब मैं खुद जाके obtain करूँ वो ज्यादा अच्छा है ना। audit evidence obtained directly By the auditor, more reliable. by auditor हाँ is वो है. more relevant as compared to evidences
provided by client. Fair enough. Audit evidence is a documentary form, whether paper, electronic, or other medium, is more reliable than Documentary evidences obtained evidences orally. are more reliable than Evidences obtained orally. evidences obtained Obtained orally. orally. Then there is one more. Hmm. Audit evidence obtained as original documents is more reliable than audit evidence obtained as photocopies. Original documents are more reliable Then than audit, scanned or photocopy. yeah, fair enough. करेक्ट. ये क्वेश्चन आराम से 4, 5, 6 मार्क्स का कैंडिडेट है. 6 पॉइंट तो है इसमें ऑलरेडी, राइट. एक्सटर्नल सोर्सेस मोर रिलायबल, इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन्ड मोर रिलायबल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर ऑलवेज मोर रिलायबल, डायरेक्टली ऑब्टेन. पॉइंट 2.4 सेम नहीं है क्या? नहीं मैम, अलग ही है. अच्छा, अलग ही है क्या? ओके देन. ओके देन इंटरनली जनरेटेड एविडेंसेस. हम ये नहीं बोल रहे कि इंटरनली जनरेटेड एविडेंस अच्छे नहीं है. हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इंटरनली जनरेटेड एविडेंसेस पता है कभी ज्यादा रिलायबल होते हैं जब उसके साथ में उसके जो इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी ने लगाए हैं ना, दे आर मोर इफेक्टिव. यस. फिर आपका अगला टॉपिक आता है एवरीवन, कैसे डिटरमाइन करें कि कोई हमारे कंक्लूजन के लिए, हमारे ऑडिट के कंक्लूजन के लिए कोई ऑडिट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है. ये ऑडिट एविडेंस का जो SA आता है वो कहां से आता है? सो देखो, एक चीज याद रखना, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस आर बोथ इंटर रिलेटेड. सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी. इट इज अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. कितना क्वांटिटी में एविडेंस इकट्ठा करना है, कितना क्वांटिटी. ऐसा ट्रक्स भर भर के एविडेंस लेकर के आएंगे क्या हम? नो. इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. सो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सफिशिएंसी कैसे डिटरमाइन करते हो. कैन यू टेल मी मयंक, व्हाट आर द फैक्टर्स? जस्ट मुझे साइड हेडिंग्स बताओ, क्या फैक्टर्स होते हैं फॉर डिटरमाइनिंग कि कोई ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है. कितना एविडेंस इकट्ठा करें हम? पहले तो उसका सोर्स क्या है वो देख लेंगे. नहीं, पहले उसका कितना एविडेंस इकट्ठा करेंगे. सॉरी, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ. एक होगा ना फैक्टर अफेक्टिंग द सफिशिएंसी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस. यस मैम. मटेरियलिटी. मटेरियलिटी. यस मैम. दूसरा मटेरियलिटी और रिस्क रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर साइज एंड पॉपुलेशन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. कितना डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करना चाहिए एज एन एविडेंस, इट डिपेंड्स ऑन कि वो पर्टिकुलर आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके क्लाइंट के यूजर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या बोला सेंटेंस? आप कितना एविडेंस इकट्ठा करोगे विल डिपेंड ऑन कि वो आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स के लिए कितना मटेरियल है. अगर वो मटेरियल नहीं है और आप एक हफ्ता बैठा करके अपने आर्टिकल से एविडेंस ऑब्टेन करवा रहे हो, डोंट यू थिंक टाइम कितना वेस्ट हो रहा है आपका? Yes. अभी कैसे पता चलता कोई आइटम? आप मालूम है आपकी P&L में एक अदर एक्सपेंसेस करके लाइन आइटम होता है, हार्डली कुछ अमाउंट उसमें पड़ा रहता है अदर एक्सपेंसेस में. अब उसको बैठ करके बच्चों से देखो देखो अदर एक्सपेंसेस में क्या है, एक हफ्ता लगा दिया बच्चों ने सेंस बनता है उसका? यूजर के अदर एक्सपेंसेस देखने के लिए बैठा है, यूजर ऊपर के आइटम्स इग्नोर करने वाला है क्या? सवाल ही नहीं. यूजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा तो रेवेन्यू, मेन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब देखेगा या नहीं देखेगा? So find out करो what is material. Materiality is defined as the significance of transaction, account balance or disclosure to the user of financial statement. हमारे हिसाब से मटेरियलिटी नहीं देखते, मटेरियलिटी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है. और ये मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे 320 में सिखाया है कि यूजर का टेंशन कहाँ पर है. आर बी क्लियर गाइज ऑन दिस ऋतुजा? लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ असर्शंस आर लेस मटेरियल टू द यूजर. अगर यूजर को फर्क नहीं पड़ता है उस आइटम से इतना ज्यादा तो उसमें भर भर के एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है. बट उसका वैसा वर्सा, उसका उल्टा भी होगा क्या? अगर वो बहुत ही मटेरियल आइटम है तो प्लीज कृपया करके ज्यादा एविडेंस लेकर के आए. आर बी क्लियर? मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन करती है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेस मटेरियल लेस एविडेंस, मोर एविडेंस मोर मटेरियल मोर एविडेंस. मटेरियलिटी किसके हिसाब से डिटरमाइन करेंगे? खुशी एक बार मुझे कंफर्म कर सकते हो?
ऑडिटर और यूजर, मुझे एक वर्ड में आंसर चाहिए। मटेरियलिटी किसके हिसाब से सोच रहे हो, ऑडिटर के हिसाब से या यूजर के हिसाब से? यूजर, परफेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जाम इन जनवरी। Yes. ठीक है, आपके को एग्जाम में तुरंत वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। लेकिन दूसरा फैक्टर सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर किसी आइटम पे, मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, अगर किसी आइटम में रिस्क ज्यादा है तो आप ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करोगे या कम एविडेंस कलेक्ट करोगे? ज्यादा इट evidence. विल बी मोर, राइट? इफ द रिस्क इज लोअर देन Less evidence. less evidence, right? So risk of material misstatement is consist of inherent risk and control risk. Less evidence would be required in case there is a lower risk of material misstatement, but higher risk of material misstatement के केस में more evidence is required. बहुत easy answer है। अब देखो उस size and characteristic of the population समझो आप। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन कैसे, ये ऐसे 530 में आपको समझाया जाता है कि सपोज सेल्स में 1 लाख ट्रांजेक्शन है, तो वो 1 लाख ट्रांजेक्शन उसका पूरा पॉपुलेशन हो गया। अब उसको आप एनालाइज करो और समझो किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें। क्या वो एक जैसे दिखने वाले होमोजेनियस लार्ज ट्रांजेक्शन है, या तो फिर कम ट्रांजेक्शन है, या फिर बट अलग अलग नेचर के हैं, या तो फिर ज्यादा भी ट्रांजेक्शन है बट हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे से अलग अलग है। सो जब भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, ट्रांजेक्शन एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं ना ज्यादा, वहां पर ज्यादा एविडेंसेस यू कलेक्ट, बट इन केस ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन यू ऑलवेज कलेक्ट लेस एविडेंस। आर बी क्लियर ऑन द साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक गाइज? Yes. अगर ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम के लिए ना ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है जिसके 5 6 7 पता नहीं कितने पॉइंट, अरे बाप रे, अप्रोप्रिएटनेस कैसे डिटरमाइन करेगी? एक्चुअली नहीं, वो नीचे वाला क्वेश्चन दूसरा है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस कैसे डिटरमाइन करते हो? अप्रोप्रिएटनेस ऑलवेज इज बेस्ड ऑन द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। कैन यू टेल मी रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी आपने इसके पहले कहां पर पढ़ा है? जस्ट अभी पढ़ के आए हो आप रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, यस? Yes, ma'am. सो उन्होंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था कि हाउ when you consider an information to be relevant and when you consider your information to be reliable, and सिर्फ नीचे जाके उन्होंने वन लाइनर में आपके नोट्स में बोल दिया होगा कि appropriateness कैसे डिटरमाइन करते हो। appropriateness you determine on the basis of relevance and reliability in providing support to the conclusion that you are reaching. so reliability और एविडेंस की किस पे बेस्ड होती है? सोर्स, नेचर प्लस सर्कमस्टांसेस इन विच इट इज obtained प्लस उसके साथ में क्या इंटरनल कंट्रोल्स है। Guys, do you have all this points in your books? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, now आपके लिए ना आईसीआई ने प्रोसीजर सेट किया हुआ है। आईसीआई क्या बोलता है? डियर ऑडिटर, अभी ये पूरे लाइन में आप वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस वाला आंसर याद है क्या? 4 स्टेप प्रोसेस क्या था? 4 स्टेप प्रोसेस रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन 315 याद है क्या आपको? पहले आप क्या करते हो? यू Inquire. Identify अरे the यार, अच्छा कहाँ नहीं नहीं, वो इंक्वायर करेंगे? प्रोसेस अलग है। identify risk. Identify, assess, assess, then relate, Relate the Relate and likelihood. consider. last is consider the Likelihood. likelihood, करेक्ट? तो वो स्टेप थे कि एक एक स्टेप में जाना है। यहां पर भी उन्होंने ना आपको ऐसे कुछ प्रोसेस बोला है, लाइक प्रोसेस है, एक ओवरलैपिंग भी हो सकता बट ये प्रोसेस है कि एक ऑडिट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन आपको करना है, ठीक है? सो उसके लिए क्या करोगे आप? Auditor shall design and perform audit procedure that are appropriate in the circumstances for the purpose of obtaining the evidences. And evidence कैसे होना चाहिए? Audit evidence is necessary to support your opinion and report. ठीक है? However, it may also include evidences obtained from other sources such as previous audit. कभी कभी आप evidences obtain करने के लिए you can use the work of management expert. रिमेंबर, अभी ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला ना सीए फाइनल में पढ़ोगे आप ऐसे 620 में। देन एविडेंसेस जो होते हैं ना, वो आपको वो क्या कैसे होने चाहिए? दे नीड्स टू बी सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव। इन एडिशन, यदि सपोज कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन इन सम केसेस मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं नहीं हम नहीं प्रोवाइड करेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन। दैट ऑल्सो बिकम्स एन एविडेंस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पॉइंट 6 कितना बढ़िया लिखा हुआ है। आप ऑडिट करने के लिए गए, आपने बोला मुझे इन्वेंट्री चेक करने के ऑडिट करने के लिए जाना है, क्लाइंट ने बोला कोई जरूरत नहीं है,
ये जो क्लाइंट ने शब्द बोले ना, आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं अलाउ करूंगा, दैट वर्ड इटसेल्फ इज एन एविडेंस फॉर यू। आप जाके ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना, वी आर नॉट गिविंग एनी ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं क्योंकि क्लाइंट हमको लिमिटेशन लगा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ .6। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लाइंट का आपको कोई चीज मना करना भी आपके लिए एक सबूत ही है, जिसके बेसिस पर आप सिंपल से जाके क्वालिफाई कर दो या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। यस। Yes, ma'am. .7, most of the auditor work in forming the audit opinion consists of obtaining and evaluating audit evidence। पूरा जो आपका चैप्टर है वो यही बता रहा है कि आपको एविडेंस ऑब्टेन करना है, फिर इवेल्युएट करना है। एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आपके पास 7 मेथड्स होते हैं। एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आपके पास 7 मेथड्स होते हैं। विवेक, व्हाट आर दोज मेथड्स? Inspection, observation, confirmation, recalculation, analytical procedures, and reperformance. रीपरफॉर्मेंस। आप इंस्पेक्शन करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, कंफर्मेशन करते हो, रिकैलकुलेशन करते हो, रीपरफॉर्मेंस करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो। यस। इसमें से कुछ मिसिंग है क्या? इंक्वायरी क्यों नहीं लिखा है? Inquiry alone is ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, Inquiry in रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। I mean, 6 ही inquiry हुआ ना? 7 इंक्वायरी मिसिंग ना इन दिस लिस्ट। 1 2 3 4 5 6 ही है यार, इंक्वायरी इज मिसिंग। ऐसा कैसा? मैम लास्ट में लिखा है लास्ट में इन लिखा है अच्छा, एडिशन टू ओके एडिशन टू ओके, इंक्वायरी। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, यस यस यस, डर गई मैं। करेक्ट, ये याद रखोगे। इसके ऊपर ना इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछते हैं, वो इंस्पेक्शन का ज्ञान लिख करके आना पड़ता है आपको। चलो, अभी एक बात याद रखो, ये और सुनो, आपको ना ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एज अ प्रोसेस नहीं आएगा, ऐसा नहीं आता है ये क्वेश्चन, बट ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे ये चैप्टर में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है चैप्टर 4 में। आर वी क्लियर हम क्यों पढ़ रहे हैं? लॉजिकली सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो, रटना नहीं है इसको बैठ करके। करेक्ट। नाउ, रीजनेबल अश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करते हो? आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्यों? ताकि आपका ऑडिट रिस्क कम से कम रहे। रिद्धि, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिस्क? Risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. मिसस्टेटेड। ब्यूटिफुल। सो यही काम है, आप एविडेंस क्यों ऑब्टेन कर रहे हो? ताकि आपका ऑडिट रिस्क कम से कम रहे। ओके। ऐसे 330 इवन रिक्वायर यू टू कंक्लूड कि क्या आपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए हैं, जिससे आपके जो ऑडिट रिस्क है वो सबसे लोअर लेवल पे रहे। ठीक है। बट प्लीज लास्ट पॉइंट एक चीज याद रखना, आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज आपको एविडेंस ऑब्टेन करना है एंड ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, तो प्लीज डोंट अज्यूम कि आप किसी वॉर वाले सिचुएशन पे, आप जंग नहीं लड़ने के लिए गए हैं कि एकदम जी जान झोंक देंगे, सीए फॉर्म को गिरवी रख देंगे, घर बेच देंगे, कुछ भी करेंगे बट ऑडिट एविडेंस लेकर आएंगे। नो 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 नो, प्लीज डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉस्ट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए यू जस्ट कांट डू एवरीथिंग लाइक अनरीजनेबली कुछ नहीं करना है। ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से जो आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो भी आपको करना है आप करो, बट प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू आर बैलेंसिंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैं समझ रहे कि एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए आपका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, आपका ऑडिट फीस उससे कम है, आप लॉस मेकिंग बिजनेस पे नहीं चले जाओगे। yes करेक्ट, उतना ही बोल रहा था पॉइंट, ये आपका ये पॉइंट जो था। ठीक है। सोर्सेस ऑफ एविडेंस, ठीक है, सोर्सेस ऑफ एविडेंस वो ये जाने दो, अभी मेरे को आपको ये बताना है। हाँ चलो, अभी मुझे एक बात बताओ, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड इंक्वायरी, इसमें एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स, 3 to 4 पॉइंट्स कैन यू टेल वन बाय वन? क्योंकि ये एग्जाम में आता है एंड आप स्क्रिबल करोगे मेरे साथ में वेर एवर इन योर बुक। हरसिद्धि, कैन यू कवर इंस्पेक्शन क्या है? Inspection involves examining records and documents, whether internal or external, in paper form, electronic form, or other media, or a physical examination of an asset. How do I write so fast? Sorry. No, inspection, it involves examination of Records or documents. records or documents. Everyone please write, she is speaking in the class, no? It involves examination of records and documents, Whether internal or external, in paper form,
or external in paper comma in paper form, comma in electronic form or any other media, or in any other media. Okay. or a physical examination of an asset. Or a physical examination of an asset. सो आप एक असेट को फिजिकली वैसे वेरीफाई करो, या फिर आप डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में आप एविडेंसेस देखो, आप पेपर फॉर्म में एविडेंसेस देखो, आप इंटरनली ऑब्टेन करो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, या एक्सटर्नली करो. एंड वेन एवर यू आर एग्जामिनिंग देम इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, यू आर एक्चुअली डूइंग द इंस्पेक्शन. सो इंस्पेक्शन असेट्स का भी हो सकता है, इंस्पेक्शन पेपर्स का भी हो सकता है, राइट? देन Inspection of records or documents provides audit evidence of varying degrees of reliability, it provides audit evidence of varying degrees of reliability, depending on their nature, source, and in case of internal records and documents, on the effectiveness of controls over their population. On documents on effectiveness of Controls of effectiveness of the controls over their production. Can you please explain this second point? Possible. Like if you gather any audit evidence using inspection, so the reliability of that audit evidence will depend upon the effectiveness of the controls over the over फर्स्ट the ऑफ ऑल आपने किस नेचर से उसको एविडेंस ऑब्टेन किया था, क्या सोर्स से किया था, एंड अगर आपने उस लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आर द रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स अराउंड दैट एविडेंस, जहां से फ्रॉम वेयर these evidences are produced to you. So Yes. right, you just because कोई चीज पेपर फॉर्म में है या आपने खुद फिजिकल एग्जामिन किया है, डायरेक्टली आप उसके ऊपर ऐसा रिलाई नहीं कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन सर्टेन केसेस. यस, ऑल राइट. There are only 2 points. How many points are there in inspection? Ma'am, in my material we only have 2 points. 2 And points. ठीक है, I'm when just we are asking, right? We are just trying to summarize कि एग्जाम में हमको कितना याद करके जाना है, बस उतना. then example, there is inspection of records for evidence of authorization. Okay, there is example of inspection Yes. Inspection of records for evidence of authorization. for evidence of authorization. आप परचेज ऑर्डर कॉपी देखते हो कि भाई ये ऑथराइज है या नहीं है, राइट? देन यू ऑल्सो इंस्पेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मटेरियल इन्वेंट्री आइटम्स. ठीक है, आप कब करते हो? जब ऐसे 501 आप अप्लाई करते हो. आई थिंक इतना लिखने से आपका काम हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 to 3 marks, 3 marks minimum they will ask on this question, right? Can Yes. we, okay, Juhi, can you cover observation? Observation consists of looking at process or procedure Looking at process or procedure, okay, being performed by others. being performed by others. So मतलब आप खुद तो नहीं कर रहे हो प्रोसेस, आप गए हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो. ओके, देन Observation provides audit evidence it about provides audit evidence about the performance of a process or procedure yes, but it is limited to the point in time at which observation takes place. जो ही पॉइंट 1 सबको बहुत इजीली समझ में आ गया. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट 2? मैम पॉइंट 2 का मतलब ये है कि जब जब भी ऑब्जर्वेशन होता है तो वो जो ऑडिट एविडेंस है वो पॉइंट इन टाइम के लिए रेलेवेंट है. गिव एग्जांपल. नो, ऐसा कब होता है? जैसे
मैम आप हाँ इन्वेंट्री जब इन्वेंट्री काउंटिंग जब करते हैं, मतलब क्लाइंट के लोग जब इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो एविडेंस जो है पॉइंट इन टाइम के लिए तो अगर रहता 31 मार्च को इन्वेंट्री हो रहा है तो आपको 31 मार्च को इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा वही पता चल रहा है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लास्ट ईयर वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रहा था या मिड ऑफ द ईयर में इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रहा था। अगर एंटिटी ने सपोज कंट्रोल्स लगाए हैं और आपको दिख रहा है कि क्या कंट्रोल्स लगे, तो जिस दिन आप देख रहे हो ना उसी दिन का वो पॉइंट इन टाइम का एविडेंस है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे 12 महीने में वो चीज हो रही थी। आर वी क्लियर गाइज लॉजिकली ऑन दिस दैट इन ऑब्जर्वेशन? इसके लिए ना कोई आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं पूरा ऑडिट में सिर्फ इंस्पेक्शन करूंगा या सिर्फ ऑब्जर्वेशन करूंगा। इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑडिट एविडेंसेस यूज करने पड़ते हैं, मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, सो दैट यू कैन कोरैबोरेट योर ऑडिट एविडेंसेस वेदर दे आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और नॉट। आप सिर्फ इन्वेंट्री प्लेस में जाकर के ऑब्जर्व कर रहे हो, आप खुद इंस्पेक्ट करके देख लो ना 2-4 आइटम, राइट? देर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू चेक। आपको वैल्यूएशन चेक करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? समटाइम्स यू टेक द एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग रहते हैं? क्रेडिटर ही वो लोग है ना जिन्होंने ये इन्वेंट्री भेजा है। सो व्हेन यू डू ऑल ऑफ दैट तब जाकर के आपको किसी के इन्वेंट्री के बारे में थोड़ा सा कुछ एविडेंस मिलता है। सो दैट इज व्हाई प्लीज अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन ऑलवेज गिव्स यू एविडेंस रिगार्डिंग अ पॉइंट ऑन टाइम, कि जिस दिन आप खड़े होकर के वो चीज देख रहे होते हुए उस दिन तो बराबर है, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द टाइम? आर बी क्लियर लॉजिकली ऑन दिस पॉइंट गाइज? Yes, ma'am. सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। उस चीज को बहुत अच्छे से समझो, एग्जाम में याद आएंगे आपको ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं लास्ट डेज पे। देन मैम कम्स द सॉरी, एक जूही और पॉइंट था क्या उसमें? एक और लाइन है लास्ट में, मतलब इसमें लिखा है द बाय द फैक्ट दैट द एक्ट ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड मे अफेक्ट हाउ द प्रोसेस और प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड, इट इज रेलेवेंट और ठीक है। आई थिंक ठीक है। देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, Mayank, will you be able to take external confirmation? Okay. Yes, ma'am. What is external confirmation? पहले External confirmation कौन may से be स्टैंडर्ड में करेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन? external confirmation may be defined as the audit evidence. Mhm. Audit evidence obtained as direct written response to the auditor. वेट करना, ठीक है? ये आप हो, ये क्लाइंट है और ये कस्टमर्स हैं, ठीक है? क्लाइंट कस्टमर को माल बेचता है, कस्टमर क्लाइंट को पैसा बेचता है। आप क्लाइंट प्लेस पे गए, क्लाइंट को बोला क्लाइंट मुझे कंफर्मेशन चाहिए। क्लाइंट ने बोला या व्हाई नॉट, वी आर वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव विद ऑडिटर्स, प्लीज प्लीज गो अहेड, but don't send this confirmation letter directly. You give it to me because I know the address of the customer, I know those people, I will send it to the customer. Is it a right process? No. The name itself says it is a direct written response to the auditor, so you will send it directly and you will reply to him directly, like he will reply to you directly, that customer. Are we clear? Yes, अब ma'am. इसका आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, यहाँ नहीं है, ऐसे 505 में एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पता है क्या किया था ये ना ऑडिटर बहुत स्मार्ट निकला। आपको मालूम है ऐसे 610 में यू कैन यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर Yes, और यू ma'am. कैन टेक Yes. डायरेक्ट असिस्टेंस। तो ये वो क्वेश्चन ना कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था जिसमें क्या बोला था, ऑडिटर ने ऐसे 610 का इस्तेमाल करते हुए इंटरनल और क्लाइंट के इंटरनल ऑडिटर को बोला कि भाई तू ले लेना सारे कस्टमर से एविडेंसेस। So this is the violation of 505. You can't delegate that process. Clear? लॉजिकली समझ रहे हो? ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना एग्जाम में, बट है आपके बुक्स में क्वेश्चन, आई विल शो यू दिस। चलो, ओके, सो इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस टू द ऑडिटर From a third party ओके, व्हाट एल्स? in paper form or by electronic हाँ media. वो ठीक है वो ऐसे ही समझ जाएगा। देन मेरे में तो इतना ही लिखा है बस। व्हाट? यस मैम, इतना ही लिखा है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? उसके आगे लिखा हुआ है रेफर 505। External confirmation
You write this down, Mayank. Don't look Yes, at the ma'am. book now. External confirmation are relevant when addressing. आप ऐसे लिख कर आ पाओगे कि एग्जाम में रेफर 505? External confirmations are relevant when addressing assertions associated with certain account balance and their element. But क्या हम सिर्फ अकाउंट बैलेंस के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं? No, ma'am. No. No. It shall not be restricted only to the account balance. ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने और किस किस चीज का आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो? to obtain audit evidence about absence of certain condition. Absence of certain condition, or you want to confirm a important term or condition of a contract, right? External confirmation, however, shall not be restricted to account balance only. Vishwesh, you have to write even when it is written in the books. Please वो बुक को इतना गंदा कर दो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप पास हो जाओगे. So even though it is written in your notes, write, scribble साइड में, आपको याद होती है ऐसी चीजें, right? अभी तो पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर बाद में भूल गए तो at least write this down ना. Then example, external confirmation also used about absence of certain conditions. Second example, confirmation of terms of a contract. नाउ रिकैलकुलेशन क्या है? रिकैलकुलेशन में हम कुछ नहीं कर रहे यार, हम सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं. अभी ये नहीं आएगा एग्जाम में आपको इतना लिखने के लिए. मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हो. किसका मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करोगे? कैन यू गिव मी एग्जांपल? Documents or records. Documents का record. Depreciation का calculation. हाँ, ऐसा पूछ रही हूँ मैं. डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड क्या? टैक्सेशन, टैक्स का कैलकुलेशन बराबर हुआ है, टीडीएस बराबर. इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं. इंटरेस्ट, Yes, ma'am. व्हाट डिड यू से मैम? सॉरी. इंटरेस्ट इंटरेस्ट अमाउंट का कैलकुलेशन, राइट? कैलकुलेशन. डेप्रिसिएशन, टैक्स, टीडीएस, ये सब जीएसटी कैलकुलेशन बराबर The किया है. आईटीसी वगैरह salary and बराबर से wages. निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, राइट? Salary and wages. सॉरी जयाज. And wages of the employees. Salary and wages. हाँ, सैलरी एंड वेजेस का कैलकुलेशन. सैलरी एंड वेजेस तो नॉर्मली क्या रहता है ना, उसमें लिखा रहता है अपॉइंटमेंट लेटर में, बट सैलरी एंड वेजेस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है, बट ईयर ऑन ईयर जो सैलरी हाइक मिलता है ना, उसका परसेंटेज डिसाइड होता है, तो दैट यू कैन कैलकुलेट. ऐसा बहुत सारा आप करना भी पड़ता है आपको क्लाइंट प्लेस पे, पता है क्या? चलो एनीवे, अभी अपन आते हैं रीपरफॉर्मेंस पे. रीपरफॉर्मेंस क्या कर, रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? Performing or जो मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स है उनको परफॉर्म करना होता है. So the client has already performed a procedure, you want to re-perform it, so that you want to see whether the output is same as the client has produced. Are we clear everyone? आपको लिख करके आना चाहिए. This one line you should be able to write. It involves independent execution of procedure or internal control by the auditor that were originally performed by entity. Example, re-performance of bank reconciliation, inventory counting, aging schedule of एजिंग ऑफ debtor. accounts receivable और accounts payable. एजिंग शेड्यूल आप इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, वो भी बनाना पड़ता है क्लाइंट प्लेस पे, क्लाइंट को ही बनाना पड़ता है, राइट? मयंक, एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए 520 लिखा है क्या वहां पर? अरे फॉर 520 यस मैम लिखा है. आई गेस. नहीं, देखो भला ही 520 पढ़ो, लेकिन कैसा रहता है ना, जब वो ये क्वेश्चन पूछेंगे ना आपको सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में लिख कर आने के लिए, तो दे विल आस्क फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. तो एटलीस्ट 2 से 3 लाइन तो आपको लिखने आनी चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर में, राइट? एनालिटिकल प्रोसीजर
It involves evaluation of financial as well as non-financial financial data. Analytical procedures provides information or evidences about assertions in financial statement of which auditor was unaware of, such as ratio analysis, trend analysis of sales or profit, ratio analysis of balance sheet items. एटलीस्ट इतना 2-3 लाइन आप लिख सकते हो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उनका पता है फेवरेट एक टॉपिक होता है इसमें से सातों में से पूछने का, इंक्वायरी. Inquiry. एक्चुअली होता है ये. गुड दैट यू ऑलरेडी नो दैट, बिकॉज इंक्वायरी में ना आपको याद तो रह जाएगा कि किस किस से इंक्वायरी करना है, बट इंक्वायरी में लिख के क्या होगे, दैट मैटर्स, राइट? Yes, ma'am. ऋतुजा लाइब्रेरी में हो? हाँ, यू आर इन द लाइब्रेरी ना, मेरे को दिख रहा है बैकग्राउंड. ओके. जयांश, आप कवर करोगे क्या इंक्वायरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Inquiry. Inquiry consists seeking information Inquiry consists of seeking information information of knowledgeable persons of knowledgeable persons, both financial and non-financial, both financial and non-financial, within the entity or outside the entity. within or outside entity. ये within और outside entity लोगों की बात कर रहे हैं. It can be from the people within the entity or it can be from the people outside the entity. Okay, next. Inquiry is used extensively It is used extensively throughout the audit throughout the audit. in addition to other audit procedures. And Inquiry may may range from formal range written from inquiry formal written inquiry to informal oral inquiry. to Informal informal oral oral inquiry. inquiries. Now third point is very important. सिर्फ इंक्वायरी करके सामने वाला जो बोल रहा है हम उसको ग्रहण नहीं करके आ जाते हैं. I have taught you this, right? Evaluating response to inquiries. You have to evaluate. Correct. Evaluating Response to inquiries responses of inquiry is an integral part of inquiry is process. an integral part of Inquiry process. inquiry process. Responses to Why? inquiries. Yes, ma'am. नहीं, because हाँ, आगे go ahead. Responses to inquiry may provide the auditor with information not previously possessed with corroborative audit evidence. Responses to inquiry may provide auditor with Information not not previously possessed possessed in by connection with corroborative audit evidence. auditor.
देन आप उसके बाद में वो लिख सकते हो कि यू कैन डू द इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, अदर पीपल विद इन द एंटिटी एंड ऑल ऑफ दैट. दैट इज समथिंग दैट यू हैव लर्न. बट एटलीस्ट ये 3 to 4 मार्क्स के लिए यू शुड बी एबल टू राइट दिस अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल. नाउ डोंट फॉरगेट दैट इसमें से एक आध कुछ वो लोग टेस्ट कर ही लेते हैं, कभी ना कभी उनका मूड होता है वो पूछते हैं. और ये जो बड़े वाले आंसर है जिसमें मोर देन 3 to 4 पॉइंट्स लिखने के लिए, उनके लिए बहुत आसान है ये चीज पूछना. सो एटलीस्ट आपको लिखना आना चाहिए. और क्या होगा ना, इवन दो दे से कि 520 रिफर करो, अदर टॉपिक रिफर करो, अगर ऐसा नोट्स में लिख भी दिया है, माय कंसर्न इज वहां पर इसका टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अलग हो सकता है. मॉडल टेस्ट पेपर में जब कॉपी चेकर के पास जाता है तो 500 का आंसर जाएगा, फिर वो देखेगा दोनों मैच नहीं, अननेसेसरी मार्क्स हम लूज कर देते हैं, राइट? यस मैम, कॉन्टेक्ट सेम नहीं होता है, दोनों का अलग अलग. या डन गाइस, शैल वी गो अहेड, फिनिश करेंगे चैप्टर 5. सुनो मेरी बात, कितना कितना नेचर टाइम एंड एक्सटेंड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितना होगा? सॉरी मैम, तो अगर इन लोग को मतलब 500 में से पूछना रहेगा तो फिर वो लोग मेथड्स ऐसे पूछेंगे कि हाँ लाइक हाँ, मेथड्स method of में से collecting audit evidences, or explain inspection and inquiry as a method of collecting audit evidence. ओके. They will ask this. नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर छोटू सा टॉपिक है, द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. सो आप बोलोगे देखो नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो होगा ना, इट विल बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट सम ऑफ द अकाउंटिंग डेटा एंड अदर इंफॉर्मेशन मे बी ओनली अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एट एनी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. आप कब जाओगे क्लाइंट प्लेस पे लेने के लिए, किस तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा? समटाइम्स सम इंफॉर्मेशन आर ओनली इन सॉफ्ट कॉपी एंड समटाइम्स कोई इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आपको मिल सकती है. ठीक है? एंड आफ्टर अ पीरियड दैट डेटा मे नॉट बी रिट्रीवेबल. सो एट दिस स्टेज इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू और पर्टिनेंट टू डिस्कस द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. जस्ट फिर उन्होंने उसका ज्ञान दिया है जो आपने ऑलरेडी 315 एंड 330 में पढ़ा है, इसका ज्यादा कुछ बहुत यूज नहीं है, राइट? हैव आई टोल्ड यू दिस कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के बाद जब आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए जाते हो तो आपके पास में टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना रहता है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करना रहता है जिसके अंदर आप टेस्ट ऑफ डिटेल करते हो एंड एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो. दिस आई हैव, ये तो मैंने आपको सिखाया है. ठीक है? हाँ, अभी याद रखना ये जो असर्शंस है ना, ये चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में डिस्कशन है. अब तुम लोग मेरे पर हंसो मत कि आपने ऐसा क्यों लिखा है रेफर चैप्टर 5, क्योंकि ये वहां पर सेम ही है, उसमें कुछ नहीं चेंज हो रहा है. ठीक है? सो विल रेफर, जब चैप्टर 5 करेंगे तो बहुत डिटेल में करना पड़ेगा असर्शंस ओवर देयर. लेकिन अब आया आपके लाइफ में $1 million क्वेश्चन, ऑडिट ट्रेल. और आपको याद होना चाहिए अभी एंड इसी वक्त ये क्वेश्चन. ठीक है? कितना बाकी है 500 में को देखने दो, ज्यादा नहीं है, एक पेज ही है, खत्म हो जाएगा. लेकिन ये आंसर आपको याद करना है कि ऑडिट ट्रेल क्या होता है. वॉट एवर मटेरियल यू हैव, यू प्लीज राइट विथ मी, कहीं पर भी लिखना है लिखो. इट इज अ फ्लो ऑफ, सॉरी, इट इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शंस. क्यों है ये डॉक्यूमेंट ऑफ फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन? टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए? हाउ सोर्स डॉक्यूमेंट was translated into an accounting entry and posted in financial statement. आप पूरा लाइन समझो कितना ब्यूटीफुल है कि एक ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट से होके जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जर्नल एंट्री से कन्वर्ट होके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने प्रॉपर बैलेंस शीट पीएनएल में कैसे पोस्ट हो रहा है. किसी के कंप्यूटर सिस्टम में ये पूरा फ्लो समझना, उसका प्रोग्रामिंग कोडिंग समझना कैसे पॉसिबल होगा? इट इज बेस्ड ऑन दिस ऑडिट ट्रेल. So audit trail, I'll repeat, don't worry. It is a documented flow of transaction. क्या बोला मैंने? Audit trail is a documented flow of transaction. क्यों होता है ये documented flow of transaction? It is used to investigate. क्या investigate करने के लिए? कि how a source document was translated into accounting entry and posted in the financial statement.
Learn this sentence, guys. Yes, ma'am. Beautiful. Audit trail is used. Why? To establish what? Authenticity and integrity of information. Authenticity, authentication, and integrity. Of what? Of Transaction. a transaction. एक ट्रांजेक्शन ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इंटीग्रिटी के साथ में किया गया है, देर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ट्रांजेक्शन इज नॉट डिस्टॉर्टेड. And it also helps in maintaining Record record system. of system and user activity. आपका ना, आप इंस्टा में दिन में कितने बार चेकआउट करते हो? लाइक हाउ मेनी टाइम्स डू यू लॉग इन इनटू इंस्टा, और हाउ मेनी एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू एक्चुअली ओपन योर इंस्टा एंड व्हेन डिड यू क्लोज? ऑल ऑफ दिस गेट्स रिकॉर्डेड इनटू मेटास ट्रेल. वो कब तक रिटेन करते होंगे वो उनके ऊपर है, बट एवरीथिंग एवरीथिंग. एंड उनका ऑडिटर, उनके ऑडिटर को ये सारी चीजों, जो ऑपरेशनल ऑडिटर होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर, उनको सबको एक्सेस होता है उन चीजों का, उनको लेना पड़ता है टू चेक की कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज है क्या, राइट? सो ऑल ऑफ दैट. सो सिमिलरली इन client's computer system or information system, they would be maintaining the record of system activity, user activity, and they will use this audit trail to establish. As an auditor, you have to use this audit trail to establish कि ट्रांजेक्शन भाई कैसे ऑथेंटिकेट हुआ है, किसने अप्रूव किया है, उसमें इंटीग्रिटी है या नहीं है वो ट्रांजेक्शन पे. Then you will not stop over here, and you will also learn that it is a step by step record by which accounting details and other financial data can be traced to its source. सोर्स तक पहुंचने के लिए, किसी भी डेटा के सोर्स तक पहुंचने के लिए आपको हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? ऑडिट ट्रेल हेल्प करता है. एंड देन आप उसको लिखना, इट एक्ट्स एज अ लॉग और रिकॉर्ड कीपर. कैसा रिकॉर्ड कीपर? दैट डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा रिकॉर्ड कीपर जो डॉक्यूमेंट कर रहा है इवेंट्स, प्रोसीजर, कॉमा ऑपरेशन. क्यों कर रहा है? वाई? टू रिड्यूस फ्रॉड, एरर और अनऑथराइज्ड यूज. कोई क्लाइंट ऑडिट ट्रेल क्यों मेंटेन करेगा? आप सोचो ना, क्योंकि उसको भी तो जानना है ना कि भाई मेरे सिस्टम पे कोई जाके फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, मेरे सिस्टम में कोई एरर तो नहीं हो रहा है, मेरे सिस्टम को कोई अनऑथराइज यूज तो नहीं कर रहा है कोई बंदा. ऑडिट ट्रेल क्यों मेंटेन करेगा क्लाइंट? एंड प्लीज वन थिंग वेरी क्लियरली, ये सब करने के लिए फ्री में नहीं होता है ये सब चीजें, इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, राइट? सो ऑडिट ट्रेल इन्वॉल्व्स कॉस्ट, not always in terms of amount, but also in terms of time involved. ऑडिट ट्रेल बनाने के लिए, इस चीजों को एनालाइज करने के लिए, डेटा को कितना टाइम भी कंज्यूम होता है. सो इट इज नॉट जस्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी अमाउंट, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द टाइम इन्वॉल्व. बट इससे फायदा क्या होता है? इवन दो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, सिस्टम्स, कौन से सिस्टम की बात करिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम, ईआरपी सिस्टम, सिस्टम्स विच हैव फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल
inspires confidence, will inspire confidence confidence in auditors. audit. And Why? एक और point Just a second, Siddhi, I'll just complete Riddhi, I'll complete the last sentence because it enhances data security. Yes, dear, बोलो. मैं वही बोल रही थी कि one more point is there आपने कर दिया हो गया ना? हाँ. मतलब वी एवरीथिंग वी राइट वी हैव हमको उसको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब अगर आपके लेवल पे वो पूछेंगे ना तो मतलब आप ये मान के चलो कि ये इट्स अ वेल डिजर्व्ड क्वेश्चन. इंटर के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको समझ में आना चाहिए. एंड क्यों समझ में आना चाहिए इसके लिए नहीं, आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज है भी नहीं इस चीज का. बट वेन यू गो टू अ क्लाइंट प्लेस एटलीस्ट आप ऐसा नहीं हो कि आप डॉक्यूमेंट्स ही देखते बैठो. आप ये जाओ सिस्टम में जाओ, आईटी वाले बंदे से बात करो, उसको बोलो मुझे ट्रांजेक्शन का ट्रेल दिखाए भाई. मुझे कैसे समझेगा ये ट्रांजैक्शन कब इनिशिएट हुआ है, बीच में किसी ने इसको डिस्टॉर्ट तो नहीं किया है, किसी ने जाके रेट चेंज कर दिया जीएसटी का, किसी ने अमाउंट में एंटर कर दिया, किसी ने बैक डेटेड जाके इनवॉइस का डेट बदला है. ये सब चीजें कैसे समझोगे जब आपको ये समझेगा कि भाई क्लाइंट के प्लेस पे ऑडिट ट्रेल मिलेगा आपको कंप्यूटर सिस्टम पे, राइट? yes ma'am. Yes, ma'am. मैम ये लास्ट पॉइंट में बिकॉज के बाद में क्या लिखूं? बिकॉज इट enhances data security. ऑडिट ट्रेल रखने से डेटा का सिक्योरिटी बढ़ जाता है. नाउ कमिंग टू एकदम लास्ट टॉपिक, जस्ट वन पेज हमारा ये बाकी है अभी, मतलब लाइक जस्ट लिमिटेड डेटा इज बाकी फ्रॉम 500, बट बड़ा स्टैंडर्ड था इसके लिए इट took me time to teach you that, but I hope you have some confidence so far, right? In 500. Yes. Beautiful. Now my question is, देखो इंफॉर्मेशन किसी भी जानकारी को आप ऑडिट एविडेंस यूज करने के लिए दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप सीए फाइनल में जाके वापस पढ़ोगे ऐसे 500, बट दे आर इन ऐसे 500 दे हैव नॉट गिवन यू ऊपर का पूरा ज्ञान, सिर्फ रेलिवेंस रिलायबिलिटी का बात किया है और सीधे जाके इस टॉपिक पे लेकर के आ गया है. तो आप ये समझो कि अगर ये टॉपिक सीए फाइनल के लेवल पे है तो आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि देखो इंफॉर्मेशन आपने क्लाइंट से ले ली, इंफॉर्मेशन आपने एक्सटर्नल सोर्स से ले ली, बट यहां पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है आपके लाइफ में जिसको बोला जाएगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट. मैं आपको एग्जांपल देती हूं. क्लाइंट को अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, लिसन टू मी, डोंट राइट गाइस, डोंट राइट. क्लाइंट को अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन करवाना है. Client thinks that they don't have good engineers and the valuers in their office. So उन्होंने एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर फर्म को कॉल किया, ईमेल किया, उनके साथ में इंक्वायरी किया, उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप आओ मेरे ऑफिस में एंड हमारे फिक्स्ड असेट को रीवैल्यू करके जाओ, राइट? अब ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या हुआ? दैट पर्सन बिकेम मैनेजमेंट एक्सपर्ट. हमने नहीं अपॉइंट किया था, हम तो ऑडिटर है, हमने नहीं अपॉइंट किया, मैनेजमेंट ने खुद ने अपॉइंट किया उससे और उसको, और मैनेजमेंट ने उसका काम यूज करके लिया. तो अब आप जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट पढ़ोगे ना, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. बट आप उस इंफॉर्मेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करोगे, इट विल डिपेंड ऑन सर्टेन मैटर, सर्टेन फैक्टर्स. ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको आ सकता है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को एज अ एविडेंस यूज करने के लिए आपको क्या एस्पेक्ट, क्या फैक्टर, क्या मैटर चेक करने चाहिए. डिड यू ऑल गेट दिस क्वेश्चन गाइस? लॉजिकली आपको समझा कि क्वेश्चन क्यों पूछ सकता है आपको और ये कौन से सिचुएशन पे अवेलेबल होगा? यस. सबसे पहले देखो कि उस बंदे ने क्या काम किया है, क्या वो मैटर इतना कॉम्प्लेक्स था क्या जिससे रिलेटेड मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने काम किया है. नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर. अभी एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखती हूं, एग्जाम्पल revaluation of PP. Do you think you and I will be able to revalue the PP of any company? We don't have that expertise, right? इसके लिए कुछ तो नॉलेज, ज्ञान चाहिए रहता होगा ना. सो फर्स्ट फाइंड आउट कि क्या वो कॉम्प्लेक्स मैटर है क्या जिसके लिए एक्सपर्टीज ली है मैनेजमेंट ने. दूसरा, उस मैटर में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या
क्या उस मैटर के बारे में एविडेंस लेने का ऑल्टरनेट सोर्स अवेलेबल है क्या हमारे पास? अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आ गया, अपॉइंट किया गया, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या था उसके काम का? जिस तरह से आप जब एज अ ऑडिटर जाते हो तो आपको भी ऑडिट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है, वैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट का भी कुछ फिक्स हुआ होगा ना कि वो क्या चीज पे काम करेगा। क्या मैनेजमेंट ने ये एक्सपर्ट जो है, वेदर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इज अ पार्टी एंगेज टू प्रोवाइड, ये व्हाट इज द फुल सेंटेंस, इसका क्या है लाइन लास्ट में? और इज पार्टी एंगेज टू प्रोवाइड इट टू रेलिवेंट, relevant प्रोवाइड। service. Provide relevant services. तो क्या होता है ना, दो तरीका है। मुझे अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर चाहिए मेरे ऑफिस में, तो या तो मैं उसको एज अ एम्प्लॉय करके रख लूं, या तो फिर मैं उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि सर आप आइए और ये सर्विस प्रोवाइड करिए। बस दो तरीका है ना मेरे पास। अगर मैं मैनेजमेंट है तो मैं तो या तो उसको एज एम्प्लॉय बना लूं मेरा, या तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि सर आप ये सर्विस प्रोवाइड करके दीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं, एम्प्लॉय मत बनिए। राइट। पॉइंट 6 आप देखो, द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क और इन्फ्लुएंस। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? The extent to which your client is actually influencing control over management expert work. मतलब पूरे टाइम उसके सर पे खड़ा हुआ है कि आपने कौन सा प्रोसीजर लगाया है वैल्यूएशन करने के लिए, क्या मेथड यूज कर रहे हो आप इसको करने के लिए, नहीं नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं आपको वैसे करना चाहिए। ये कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है। किसके साथ? अपने ही एक्सपर्ट के साथ में। क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि भाई अल्टीमेटली जो रिवैल्यूएशन होके मिले वो बढ़िया मिले इसके लिए। तो किस एक्सटेंट तक मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल एक्सरसाइज करता है उसके ऊपर, वो भी एक फैक्टर बनता है। देन देर इज वन मोर पॉइंट, वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू द टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो रहा है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन करने के कुछ तो टेक्निक होंगे ना, कुछ तो स्टैंडर्ड होगा ना, जिसे हम ऑडिट करते हैं। तो हमको ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड है ना, जिसके हिसाब से हम ऑडिट करने जा रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर भी कुछ स्टैंडर्ड्स तो भी लगने चाहिए ना। क्या लगते हैं नहीं लगते, आप वो चेक करो। ठीक है। नाउ पॉइंट 6 आर सिमिलर बट नॉट दैट सिमिलर ऑल्सो। सो वो सेम सेम बट डिफरेंट वाला पॉइंट है। आप दोनों में से कोई एक ही याद रखोगे। ठीक है। मैं उसके इंटरकेसेस पे अभी नहीं जा रही हूँ, इतना रेलिवेंट नहीं है। आपको 6-7 पॉइंट्स लगेंगे, दैट्स इट। दूसरा, डू यू हैव एनी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स फील्ड ऑफ वर्क? क्योंकि अगर सपोज आपको ऑलरेडी नॉलेज है रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या काम करता है, कैसे करता है, तो देन यू विल बी एबल टू इवेल्युएट हिज वर्क कि भाई उसका काम ऑडिट एविडेंस बन सकता है या नहीं बन सकता है। बट इफ यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा ना कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे काम करता है। राइट। एंड क्या आपने पहले कभी उस बंदे के साथ में, किस बंदे के साथ में, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ में, इस व्यक्ति के साथ में पहले कभी काम किया है क्या? जी ये एक्सपीरियंस। प्लीज गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स फटाक से और लर्न करो और मुझे कंफर्म करो दैट यू हैव गॉट दिस नॉलेज। मैम एक बार वो ब्रीफिंग दे सकते हो क्या प्लीज, वर्क के ए पॉइंट का, मतलब हिंदी में। विच पॉइंट? मेन मेन हेडिंग पॉइंट, Heading फैक्टर्स। point now. Okay, I'll summarize this point. So basically, see, the question here is, whenever management has employed a management expert, how do you determine that the information produced by the use of management expert can become your audit evidence? So it will depend on certain factors. First, you have to understand the matter जिसके लिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व किया गया है, उसका नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। दूसरा, उस मैटर में जैसे वैल्यूएशन पीपी में रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है। देन क्या उस मैटर के बारे में एविडेंस ऑब्टेन करने का कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स था क्या? अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को मैनेजमेंट जो है अपने एक्सपर्ट को ले आया है, तो उसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट को एज अ एम्प्लॉय लेकर आया है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर लेकर के आया है? मैनेजमेंट किस एक्सटेंट पे उसके ऊपर, उसके काम के ऊपर अपना कंट्रोल इन्फ्लुएंस करता है? क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लगते हैं क्या? क्या आपको कोई नॉलेज है क्या उसकी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में कि भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या काम करता है, उसका नॉलेज है क्या? और क्या आपने उस व्यक्ति के साथ में, डू यू हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ दैट वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट? ओके ओके। Shall we take it to the next point, guys?
Yes, sir. नाउ दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, दे में आस्क। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत दिमाग लगाने वाली भी चीज नहीं है। बट अगर क्लाइंट ने कोई डेटा खुद प्रोड्यूस किया है, देखो क्लाइंट के पास डेटा देने का ना, जब आप ये ऑडिटर हो, आप क्लाइंट प्लेस पे जाओगे, क्लाइंट को बोलोगे क्लाइंट क्लाइंट डेटा दो डेटा दो, तो क्लाइंट के पास डेटा देने के दो तरीके हैं। या तो वो आपको डायरेक्टली जो उसने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया है वो दे देगा डायरेक्टली, और ही विल यूज मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड फिर उससे डेटा बनवा के लेगा। ये दो ही तरीके होगा क्लाइंट के पास डेटा देने का। यस, सो ये दूसरा तरीका है। व्हेन इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी, ऑडिटर शैल इवेल्युएट। जब भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आई है ना आपके पास क्लाइंट से, तो आप प्लीज उसको इवेल्युएट करो सबसे पहले कि क्या वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट है। मैं अभी रिसेंटली ना जिस फॉर्म पे मैं आर्टिकलशिप की थी, उस फॉर्म पे गई थी, बिकॉज उन्होंने नया ऑफिस वगैरह ओपन किया इन पुणे। सो माई बॉस वॉज टेलिंग दिस टू मी, मधु यार ये आर्टिकल्स कैसे हैं, द मोमेंट दे गेट द डेटा उसके ऊपर तुरंत वो एनालिटिकल प्रोसीजर करने लगते हैं। दे डोंट इवन चेक कि वो डेटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है, उसमें 12 महीने के इनवॉइसेस आ गए। शी जस्ट मेंशन इट सो कैजुअली, मतलब बिकॉज शी वॉज लाइक नॉट हैप्पी विद द वे द आर्टिकल्स वर नॉट टेकिंग द वर्क वेरी सीरियसली। बट दैट लेडी इज XPWC, तो उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्किंग बहुत हाई है अपने फॉर्म में भी, राइट? सो she was telling me this and I realized कि हाँ यार बच्चे से क्यों नहीं करते। but then I realized कि you also don't read this audit very properly भाई, कि जब भी क्लाइंट डेटा देता तो सबसे पहले उसका कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी चेक करो, एंड फिर उसके बारे में उसको उसके ऊपर प्रोसीजर लगाना चालू करो, ठीक है? एंड दूसरा, इवेल्युएट वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम टू यू sufficiently precise and details for the purpose of audit. Is it clear everyone? Yes. Are you supposed to apply audit evidence? Are you supposed to check all the 100% of the population? No, ma'am. No, ma'am. Don't say no directly यार, just because you have studied 580। मुझे चेक करना है, क्या कर लोगे? मैं चेक करूंगी 100% ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्या करना है आपको? सी यार मेरा क्लाइंट है ना यार, मुझे अपना ऑडिट रिस्क लोअर रखना है, एक्सेप्टेबली लो लेवल पे रखना है। जरूरी थोड़ी है कि आपको सैम्पलिंग निकालने बोल दिया तो आप हर जगह सैंपल ही निकालते बैठो। मुझे चेक करना है, क्या करूं? फर्स्ट टाइम ऑडिट है वो मेरा, मुझे नहीं लेना है कोई रिस्क। आई एम नॉट, मैं डांट नहीं रही हूँ, आप सिर्फ याद रखना है, इसकी वजह से आपको याद रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर जगह सैम्पलिंग करो। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट 100% एग्जामिनेशन, or you can only check specific items, or you can do a proper sampling with the scientific technique. Are we clear? These are the means available to you. Don't just say कि नहीं 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 हम sample ही कूद जाएंगे sample पे। नहीं, sometimes you do select all the items, जहां पर appropriate है वहां पर करो, ठीक है? या तो फिर आप स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट कर लो। स्पेसिफिक आइटम्स कैसे सेलेक्ट करोगे? आप बोलो मैं सिर्फ ना हाई वैल्यू आइटम चेक करूंगा, या 5 लाख से ऊपर वाले सेल्स ही मैं सारे चेक करूंगा। या फिर सपोज कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट से चाहिए, आप सिर्फ उसके ही नेचर ऑफ दैट, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एंटिटी आप वो चेक करो। उसके साथ ही साथ आप ना सैम्पलिंग कर लो। सैम्पलिंग कब करो? जब आपको लगता है कि भाई एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर से मेरे को कंक्लूजन बनाना जो है वो इट इज बेटर कि सैंपल के बेसिस पे बना लूंगा, एंड सैंपल विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, तो मेरा काम हो जाएगा। सो ये 3 तरीके होते हैं आपके पास में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, आइटम टेस्ट करने के लिए। either you go for 100% टेस्टिंग, और आइदर और नहीं है, आप कॉम्बिनेशन में यूज करो। कुछ आइटम आप 100% यूज कर लो, कुछ जगह पर आप स्पेसिफिक आइटम वाइज चले जाना, और कुछ आइटम में आप प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग करना। आर वी क्लियर? ये टॉपिक इतना ही है, ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको ना जनरल नॉलेज के लिए बता रही थी कि आप आर्टिकलशिप में ऐसे गलतियां मत करना, हर जगह सैम्पलिंग नहीं जरूरी होता है। सपोज आपको क्लाइंट ने डेटा दिया, आपने उसको इवेल्युएट किया, आपको लग रहा है कि यार मुझे तो डाउट है कि ये इंफॉर्मेशन को कैसे ऑडिट एविडेंस कैसे बनेगा। देयर इज इनकंसिस्टेंसी और ए डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक सोर्स से मिला हुआ जो ऑडिट एविडेंस है इट इज इनकंसिस्टेंट विद द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्स, और यू हैव द डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन ऑडिट एविडेंस, देन यू हैव टू डिटरमाइन कि क्या आप अपना कोई प्रोसीजर वगैरह मॉडिफाई कर सकते हो टू रिजॉल्व दैट मैटर। ठीक है?
ये उतना ही टॉपिक था। नाउ रिमेंबर आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला टॉपिक पढ़ा था वाला ऊपर। Yes, sir. सो इफ द एंटिटी हैज एम्प्लॉयड और एंगेज्ड एक्सपर्ट, द ऑडिटर में आपको ऐसे बोल रहा है कि इग्नोर मत करो उस बंदे को, वो भी पढ़ा लिखा आदमी है, आप रिलाई कर सकते हो उसके वर्क पे, प्रोवाइडेड आप सेटिस्फाइड होना चाहिए उसके काम से, ठीक है। और वो काम से सेटिस्फाइड हो वो देखने के लिए प्लीज उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करो, प्लस वो क्या काम कर रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग लो, प्लस you also evaluate the appropriateness of the expert work as audit evidence for the relevant assertion. So ऊपर का क्वेश्चन के फैक्टर्स और ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहां पर वर्डिंग्स क्या यूज करेंगे, somewhere in the line of if the entity has employed or engaged expert, the auditor may rely on the work of expert provided he is satisfied that sufficient and appropriate audit evidence is obtained with reasonable assurance to form an opinion. When information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert, auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of expert's work for an audit purpose, evaluate the competence, obtain understanding, and evaluate the appropriateness of expert's work. Yes. यहाँ पर रिलायंस से रिलेटेड आपको चीजें पूछा गया है, राइट। यहाँ पर वो बोल रहा है when you are going to use the work of auditor expert, the nature and extent of audit procedure may be affected by 10 matters. यहाँ पर क्या कीवर्ड मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, I'll highlight it again. The nature, time and extent of audit procedure may be affected by these factors or matter. तब ये आंसर लिखना जब आप उसका काम यूज करने वाले हो। नीचे वाला क्वेश्चन पता है क्या पूछेंगे कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम हम रिलाई कर सकते हैं क्या? यस, रिलाई कर सकते हैं ओनली व्हेन यू आर सफिशिएंट सेटिस्फाइड दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको मिल जाएगा टू फॉर्म एन ओपिनियन। और ये करने के लिए प्लीज इवेल्युएट उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, CCO। देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द वर्क and then you also ensure that the appropriateness of expert work as an audit evidence for the relevant assertion. Are we clear, guys? मैंने जब एक्सपर्ट वाला एग्जांपल लिया था तो आपको कौन सा असर्शन हम चेक कर रहे थे? जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी तो मैंने क्या बोला था, कौन सा असर्शन हम चेक कर रहे थे? वहां पर एक एग्जांपल दिया था ना मैंने, जिसके बेसिस पे पूरा आंसर समझा था। वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किसका? पीपी का। पीपी। प्रॉपर्टी का। ब्यूटीफुल, डन। ओके, देखो अगर आपको सपोज क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता देती हूँ, यू राइट दिस डाउन। एक क्वेश्चन आएगा, व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ management's expert as audit evidence, auditor shall determine the nature and extent of audit procedures on the basis of certain factors explain। तो आपका ऊपर वाला 7-8 पॉइंट्स जो 10 पॉइंट्स थे वो आएंगे। यस, अगर सेकंड क्वेश्चन पूछा which will use the word as reliance on management's expert or auditor shall have significance with significance of that, auditor shall evaluate significance of experts work for audit purposes on the basis of certain factors। उसका काम हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं।
कि उसके काम पे भरोसा करे या नहीं करे, उसके लिए ये 3 चीजें पहले इवेल्युएट कर लेनी। वंस यू डिसाइड कि हाँ भरोसा कर सकते हैं, एक्चुअली ना ये बहुत गंदा प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन है, हम ये वाला टॉपिक पहले होना चाहिए था। एंड फिर एक बार आप भरोसा कर लेते हो कि हाँ हाँ इसका काम यूज कर सकते, तब आप डिसाइड करोगे ना कि कितना एक्सटेंड पे ऑडिट प्रोसीजर, कितना एक्सटेंड पे प्रोसीजर्स लगाना है, या कितना एक्सटेंड पे उसका काम भरोसा करना है। पहले आप ये तो समझो कि भाई वो बंदा भरोसे लायक है या नहीं है। ऐसे 610 में सही से उन्होंने ड्राफ्टिंग किया है उसका, पहले ये वाला पॉइंट है फिर बाद में, मतलब वो इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड है, बट ऐसा है ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए। आर वी क्लियर एवरीवन? लास्ट पॉइंट कुछ नहीं बोलता है, आप जो भी ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किए होंगे आप उसको देख लेना कि आप उसके ऊपर रीजनेबल कंक्लूजन बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, और उसके बेसिस पर अपना ओपिनियन बेस कर लेना, ठीक है। नाउ टेक 5 minutes break because I want to do essay 501 with you. I have spent enough time on essay 500. Essay 500 is also one of the standard that is most ignored one, क्योंकि उसके अंदर इतना कंटेंट है कि याद ही नहीं होता है, बट मैंने उसका एक एक पॉइंट आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज याद रखना इसका क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बनता ही है 500 से, ठीक है। सो 5 मिनट ले लो, जस्ट गो फॉर अ वॉक, पानी वानी भर करके आ जाओ, एंड देन उसके बाद में चालू करते हैं। Okay.